So here we have chapter number 3, human and animal figures. We see innumerable living beings roaming on earth, water, in air. There are either male or female. Consequently, they are physiologically different. On a close observation, we find beauty, beautiful body, shape, and flexibility in the physique of every living being. The structure of every living being is proportionate. This facilitates normal movement and their ability to perform their routine easily. ठीक है, मतलब हर एक लिविंग बीइंग जो है उसको मतलब इस तरीके से फैसिलिटेट है वो कि वो अपनी जो रेगुलर डे टू डे रूटीन जो है उसको वो फॉलो कर सके इजीली, तो उसके हर एक को पार्ट्स इजीली मूव हो सकते हैं. ठीक है, फैसिलिटेट्स नॉर्मल मूवमेंट एंड देयर एबिलिटी टू परफॉर्म, और उनको इतनी एबिलिटी दी जाती है कि उनका रेगुलर जो रूटीन है वो उसे फॉलो करता है. मैन इज द बेस्ट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स. और ये सारे के सारे लिविंग बीइंग्स में मैन जो है वो सबसे बेस्ट. दैट्स व्हाई मैन हैज अ सुपीरियर इमोशंस. इसलिए मैन के पास सुपीरियर इमोशंस. द आर्टिस्ट आल्सो एक्सप्रेस दोज सुपर इमोशंस थ्रू हिज पेंटिंग. Students of art should keep all these facts in mind while exercising painting. Let's see. Okay, so here human structure, measurement and proportion. Human as well as animal body is made of bones. ठीक है, मतलब एनिमल बॉडी हो या ह्यूमन बीइंग हो, वो सभी की जो ह्यूमन बॉडी है या एनिमल की बॉडी है वो सारी की सारी बोन्स के एक बेसिस पे वो बनी हुई है, मसल्स और स्किन के बेसिस पे. It undergoes change from childhood time to old age. It is therefore necessary to have all the information about the organs. Normally, human body from head to toes is divided into 7.5 parts. ये सारे के सारे पूरी human body जो है वो 7.5 parts में divide की है. The topmost part of the body is head to chin. सबसे topmost part हमारा head रहेगा. The whole body is measured on the basis of this unit. Following are the measurement of the body. First is head to navel as 3 units, navel to knee as 2 units, ठीक है, and knee to feet it's 2, and width of feet it's half. Beside this division, the face has also been divided into 4 units. अब face को भी सिर्फ 4 units में divide किया गया है. Head and hair, पहले तो head और hair है, ठीक है. Second है forehead, फिर third है nose, fourth है nose to below chin. The full length of the arm is divided into 3.5. अब arm भी 3.5 में उसको डिवाइड किया हुआ है. Shoulder to elbow का, ठीक है, वो half unit, lower arm and hand, ठीक है. ये इस तरीके से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया. Width of the falling shoulder should be 2 units, ठीक है. Let's come to this. You can see clearly in your book. Straight line sketching होता है, ठीक है. Sketching with straight line is called straight line sketching. जो straight line की जाए is called straight line sketching. Straight line sketching works as a skeleton in a human body. Straight line sketching is important in drawing entire human structure and animal structure. Human structure और animal structure बनाने के लिए ये यूज होता है. Student can draw the sketch of any size measurement, either they are adding or reducing the form can be adjusted according to the size of the paper. ठीक है, मैं पेपर की साइज के हिसाब से हम लोग उसको एडजस्ट कर सकते हैं अदर ऑब्जेक्ट्स के साथ, ठीक है, as compared to other objects. Making sketching means using lines after scanning the objects, people, and also using the imagination. Use dark pencil 4B and 6B for this purpose. इस चीज के लिए हम लोग को 4B और 6B पेंसिल को यूज करना है. Since human being and animals are moving, consequently one should observe this movement and try to capture the movements in a line. The artist has to depend on his memory and perceptions to depict it in drawing. This activity will need exceptional coordination of wrist and fingers. Increase the speed of use of lines. ठीक है, जैसे कि हमको पता है लिविंग बीइंग है वो सारे के सारे ये है, तो वो सब क्या है, मूवेबल है.
वो मतलब एक जगह पे स्थिर नहीं, वो मतलब मूवमेंट होते रहता है उसमें, ठीक है, वो एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग्स हो या कोई भी हो। सो बिकॉज कि उसमें वो लिविंग बीइंग है, इसलिए वो मूव होता रहता है एक जगह से दूसरी जगह पे। सो उसमें क्या होगा कि जो भी आर्टिस्ट है, he has to be focusing on, the artist has to depend on his memory or perceptions to depict in the drawing। इस पे ध्यान देना पड़ेगा एक पर्टिकुलर लाइन के हिसाब से, मतलब वो आर्टिस्ट को अपने मेमोरी पे ध्यान देना है, उसको एक तरह से कैप्चर करना है और अकॉर्डिंगली उसको ड्रॉ करना है। ह्यूमन एंड एनिमल फिगर देखते हैं। स्केचिंग एंड स्ट्रेट लाइन स्केचिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ड्राइंग the human and animal figure. A student would become a content to draw this figure effectively if practiced regularly। अगर इसको रेगुलरली प्रैक्टिस किया जाए तब इसको इफेक्टिवली अच्छे से परफॉर्म, मतलब उसको अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। Here are some of the figures। ये कुछ स्ट्रेट लाइन फिगर्स उन्होंने दिए हुए हैं, ठीक है, अलग अलग एक्टिविटीज करते हुए। Figure 3 explain how to draw a horse। At this first stage, it is the straight line sketch in the which a skeleton-like picture has been drawn with the help of certain lines। कुछ certain lines और circles से हम लोग skeleton type एक figure हमने draw किया, वो to draw the horse बनाने के लिए, ठीक है, इस तरीके का कुछ हम लोगों ने straight line इसको draw किया। Then at the second stage, it has been provided to form the body of the horse। फिर उसके बाद उसको बॉडी उसके पार्ट्स उसको प्रेजेंट किए गए। पहले तो हमने स्ट्रेट लाइन के हेल्प से उसको एक स्केलेटन वे में प्रेजेंट किया स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। उसके बाद हमने उसको हॉर्स को उसकी बॉडी दी, फेस है, जैसे फीट है। लेटर एट द एंड मसल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी हैव बीन फॉर्म्ड विद द माइन्यूट डिटेल्स। फिर इन डिटेल में हम लोग ने उसको मसल्स उसको पूरी बॉडी को स्ट्रक्चर दिया और उसके बाद उसको ओवरशैडिंग और प्लस के उसको एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर दिया, ठीक है, इस तरीके से मतलब। Thus the picture of the horse can be complete with the pencil shade or the colors। पेंसिल शेड या कलर से भी उसको कंप्लीट किया जा सकता है इस तरीके से इन डिटेल करने के बाद। इसको और इन डिटेल करते जाएंगे तो इस तरीके से वो फाइनल उसका ड्राइंग बनेगा। And here we have another। While drawing a human figure, similar steps and precautions have to be taken। Any shape structure can be made even by sketching। Sketching से पहले हम लोग उसका structure draw कर सकते हैं। The student can ask somebody to sit in front of him, her according to his convenience। उसके सामने किसी को भी बिठाकर भी हम लोग उसको एक स्ट्रक्चर हम लोग डिजाइन या उसको समझकर उसको ड्राइंग कर सकते हैं, ठीक है, जैसा हमको कन्वीनियंट लगे। ऑब्जर्व द पोजीशन ऑफ द मॉडल, ठीक है, पहले तो पोजीशन पे ध्यान देना है। बिफोर टू स्टार्ट स्केचिंग यू शुड कीप द मेजरमेंट इन अ माइंड। जैसे पोस्चर है उसी हिसाब से हम लोग को उसका मेजरमेंट भी ध्यान रखना होता है। ही शुड मेजर हिज फेस इन रिलेशन टू एंटायर बॉडी। ही कैन मेक अ कंपोजिशन विद 2 or 3 फिगर्स, ठीक है, 2 या 3 फिगर्स के बाद हम लोग उसको कंपोजिशन क्रिएट कर सकते हैं। See, this is how they are made। Summary है, the artist paints to express human emotion such as happiness, anger, anguish, peace, innocence and beauty। The student should try to express all such emotions to make the piece of art complete in itself। Animal structure is different from the human being figure structure, therefore he should portray similar shapes and structure। He can make a better artist if regularly practice। Regular practice से हम लोग क्या हो सकता है, उसमें ज़्यादा अच्छे से वर्क कर सकते हैं और अच्छे से उसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से हम लोग ड्राइंग बना सकते हैं। के हैबो ने ये इंडियन डांसर का एक पिक्चर बनाया है। उसके बाद बाय राम गोपाल कैट। So that we have completed that topic। ठीक है, इस तरीके से मतलब पहले हम लोग अलग अलग पहले उसका एक नॉर्मल सा फिगर ड्रॉ करने के बाद स्ट्रेट लाइन जैसे हमने बताया, उसके बाद हम लोग इन डिटेल करते गए, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली हम लोग कुछ स्केचेस बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पेंसिल।
पेंसिल भी इन्होंने बताई है, 4B और 6B पेंसिल्स को यूज कर ह्यूमन और एनिमल के फिगर्स हम लोग बना सकते हैं। सो हियर वी हैव चैप्टर नंबर 1, ऑब्जेक्ट स्टडी। Man has created several objects which we use in everyday life to satisfy our needs. Of all this, certain objects such as books, boxes, utensils are easily available. The art involved in painting such objects as they look is known as object study. तो ये इन सारे चीज़ों का अगर पेंटिंग वगैरह हम लोग करते हैं और ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब ऑब्जेक्ट का पार्ट, ऑब्जेक्ट स्टडी का पार्ट है। It advise that the learner should repeatedly draw the pictures of the objects in the which he is interested। ठीक है, मतलब जिसको भी जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हो उसका रेगुलर बेसिस पे उसकी प्रैक्टिस चलनी चाहिए, उसको ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, A student should have following things for the object study। ऑब्जेक्ट स्टडी के लिए कुछ फॉलोइंग चीजों की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि थिंग्स ड्राइंग बोर्ड है, हैंड बोर्ड है, ड्राइंग पेपर, ड्राइंग पेन, पेंसिल है, HB, 2B या 4B एंड 6B को यूज कर सकते हैं, with eraser, brush, colors, color mixing plate, several other things such as book, box, pots, fruits and other household goods are needed for making a model। एक मॉडल बनाने के लिए इन सारी चीजों से की हेल्प से भी हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, जो घर में ही इजीली अवेलेबल हो जाती है। पर्सपेक्टिव is most initial element in the process of object study। It's therefore initial that the student should be able to draw the objects on the paper exactly he observed। ठीक है, उसका इसलिए पर्सपेक्टिव प्रॉपर होना चाहिए कि वो मतलब जो जिस भी ऑब्जेक्ट को हम लोग सिलेक्ट करते हैं तो उसका प्रॉपर एक हमारे पास स्ट्रक्चर प्लस हमारा उसके लिए एक पॉजिटिव फॉर्म होना ही चाहिए, जिसकी वजह से हम लोग उसको प्रॉपरली डिजाइन मतलब प्रॉपरली उसको ड्रॉ कर पाए। व्हाट इज द पर्सपेक्टिव टू द व्यूअर आर्टिस्ट? Every piece of the object set is a serial order appears to be reduced in the size as it goes to distant position as has been shown in the figure 1। When a number of objects like bottle or a box of the same size are put in the line, they appear to be meeting at some point। ठीक है, मतलब जैसे कि ये इन्होंने बेस्ट एग्जांपल दे रखा है कि अगर सेम काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट सेम साइज उसको डिफरेंट डिस्टेंस पे रखा जाए, ठीक है, अगर इन्होंने इस तरीके से लाइन में रखा है तो समवेयर दे विल गो एंड मीट एट सम पॉइंट। ठीक है, इस तरीके से एक पॉइंट पे, जबकि आते 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 उसकी साइज भी बढ़ती है और वो एक हमें बहुत ज्यादा नजदीक भी दिखता है और ये इतना ही दूर प्लस कि उसका एक पॉइंट पे जाके मिल रहा है। इस तरीके से देखिएगा, लाइट एंड शेड देखते हैं। When light falls on any object, it shows the effect of shadow and light। The lighted part looks bright and other portion becomes dark। ठीक है, जब भी इसके ऊपर लाइट गिरेगा तो क्या होगा? इट्स अ बेसिक थिंग, जैसे उसका मतलब शेडो अब आगे पास नहीं होगा तो वहां का वो पोर्शन जो है वो डार्क रहेगा। ठीक है, पोर्शन becomes dark shadow। This can be ascertained by the looking at object with a half closed eye। ठीक है, हाफ क्लोज्ड आई से हम लोग इसको क्लियरली देख सकते हैं। दिस शैडो एंड लाइट इज एक्सप्रेस्ड बाय टोन। दे आर ऑफ 3 टाइप्स। ब्राइट एज लाइट, 3 टाइप्स के होते हैं। ब्राइट इतने ब्राइट लाइट्स की तरह, मीडियम लाइट होता है और फिर एक डीप शैडो होता है। द इफेक्ट ऑफ अ लाइट एंड शेड इज डिफरेंट ऑन स्क्वायर एंड राउंड ऑब्जेक्ट्स। स्क्वायर और राउंड ऑब्जेक्ट्स पे इसका डिफरेंट इफेक्ट होता है। स्क्वायर ऑब्जेक्ट इज अ प्लेन। As a result, the light or a shadow on each plane side is a square form। On a square object, light and shade is marked sharply। Light और shade जो होगा वो sharply marked होगा। ठीक है। On the contrary of round object, tone merges gradually from dark to light। ठीक है, फिगर 2 में दिखाया हुआ है। We therefore can paint any object very well after we have seen the object in the reality। अगर वो रियलिटी में हमने उस ऑब्जेक्ट को देखा है, ठीक है, तो वो उतनी ही बेटर तरीके से हम लोग उसको ड्रॉ भी कर पाएंगे। इधर इन्होंने शेडो बताया, मतलब शेड बताया हुआ है पेंसिल का, कितना डार्क, फिर उससे थोड़ा लाइट, उससे लाइट, एंड हियर वी हैव टोटली लाइट। इस तरीके से इन्होंने बताया हुआ है। डिफरेंट टोन्स ऑफ लाइट या दिस लाइट का टोन्स जो है, शेड जो है, कैन बी शोन बाय पेंसिल। बेटर टू यूज HB, 2B, 4B एंड 6B पेंसिल। इस तरीके की पेंसिल्स हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर बेटर इन शेड्स।
टू बी बेटर इन शेड, जितना भी शेडिंग वाला पार्ट है इसको हम लोग इस तरीके से यूज कर सकते हैं. शेड कैन बी शोन either more or less pressure on a pencil. This will ensure different tones, measurement and proportion. It is important that the student has idea of right size. It is important the student has idea of right size. इधर इनका कहने का मतलब है वो पर्टिकुलर जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी हमने सिलेक्ट किया है, उसको एक प्रॉपर साइज उसकी हमें पता होनी चाहिए एज कंपेयर टू अदर ऑब्जेक्ट. जब उसके आजू बाजू में उस दूसरे ऑब्जेक्ट्स बनेंगे सो उसका साइज है वो प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए. मेजरमेंट एंड प्रोपोर्शन. एवरी ऑब्जेक्ट हैज अ पर्टिकुलर लेंथ. हर एक ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और हाइट होती है. ठीक है. If we have this idea of the proportion of length, width and height of each object, we can know whether the object is big, small or equal in a length. ठीक है. अगर हमें इसके बारे में पता होगा तो हम लोग इसको इजीली आइडेंटिफाई करेंगे. अगर हमारा ऑब्जर्वेशन अच्छा है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको इजीली ड्रॉ करेंगे और एग्जैक्ट परफेक्ट शेप्स में उसको ड्रॉ कर पाएंगे. अगर उसकी हाइट, लेंथ, विड्थ सब कुछ हमें पता हो क्लियरली तो एनी ऑब्जेक्ट कैन बी ड्रॉन इवन विदाउट अ मेजरमेंट. बिना मेजरमेंट के भी इसको ड्रॉ किया जा सकता है. आफ्टर मेजरिंग द ऑब्जेक्ट, relative height, length and breadth is necessary for drawing any object to show bigger or smaller. Sit straight to draw the objects. ठीक है. This is an important part while drawing. जब भी कोई भी पेंटिंग, not only the objects, कोई भी पेंटिंग करो, sit straight, close one eye, sketch your hand exactly in the line of a shoulder and measure the objects. Shoulder की लाइन में कर मेजर करना है ऑब्जेक्ट्स को. सिट स्ट्रेट बैठकर हम लोग जब भी उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, जब उसको ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, तो उसको जब ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इस तरीके से, मतलब ये कुछ क्राइटेरिया है. स्ट्रेच योर हैंड एग्जैक्टली इन द लाइन ऑफ अ शोल्डर. शोल्डर की लाइन में उसको स्ट्रेच कर. होल्ड द पेंसिल इन सच अ वे दैट द थंब कुड मूव. इस तरीके से पेंसिल को होल्ड करना है जिसको थंब जो है हमारा वो मूव कर सके लेफ्ट एंड राइट, अपवर्ड, डाउनवर्ड इजीली. इफ यू हैव अ मेजर लेंथ और ब्रेथ, होल्ड द पेंसिल इन अ हॉरिजॉन्टली बट स्ट्रेट पोजीशन एंड ब्रिंग टू द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट. नाउ मूव द थंब to the right side and reach out the right edge of the object. Now to scale, measure the height of the object, place the pencil at the upper edge of the object and bring the thumb to the lower edge. Now mark the measurement of a paper. Measurement paper का measurement भी उतना ही अंदाजा होना चाहिए. You can now project the length, breadth and height either the twice or the thrice or as per the size of the paper and complete the figure as per the measurement. इसके measurement के हिसाब से हम लोग उसको draw कर सकते हैं. पेपर का measurement है ध्यान में रखकर. ठीक है. Our smudge or using colors. Students should use watercolors for being his exercise of painting. ठीक है. watercolor का हम लोग use कर सकते हैं. Painting looks lively and real after the use of colors. ठीक है. मतलब जब हम लोग कलर्स का यूज करते हैं तो पेंटिंग जो है रियल लाइफ उसका पेंटिंग का लुक आता है. There are various tones of colors in the shadow and light. अलग अलग शेडो और लाइट टोन्स होते हैं कलर्स के. ठीक है. जैसे कि ये पार्ट है जो डार्क पोर्शन है जिसको अलग अलग एक शेड्स हमें यहाँ पे दिख रहे हैं. ठीक है. और ये वाला पार्ट है बिल्कुल लाइट है. इस तरीके से शेडिंग यूज की जाती है. The red color gives a lighted portion looks bright and shadowed portion looks like darker. जो भी शेडो वाला है वो डार्कर दिख रहा है. The red color gives impression of orange shade, dark red or a grey red. Blue color becomes a sky blue, dark. ठीक है. ब्लू कलर जो है वो स्काई ब्लू हो जाता है. जितना उसको शेडेड मतलब जितना उसको फैलाओ वो धीरे धीरे व्हाइट में कन्वर्ट होता जाएगा. In the shadow, likewise the green color turns into dark green. ग्रीन कलर है वो डार्क ग्रीन में कन्वर्ट हो सकता है. पैरेट ग्रीन ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ लाइट के इफेक्ट की वजह से पैरेट ग्रीन भी हो सकता है. एंड शेड वेरियस अदर कलर्स एंड टोन्स कैन बी अचीव्ड बाय मिक्सिंग द कलर्स. लाइट कलर्स शुड बी यूज्ड टू लेट द ऑब्जेक्ट लुक ब्राइट. ब्राइट दिखने के लिए लाइट कलर्स का यूज कर सकते हैं. डार्क एंड फॉगी कलर्स शुड बी यूज्ड टू शो द डिस्टेंस एंड शेड. ठीक है. डार्क कलर्स को हम लोग डिस्टेंस के लिए यूज किया कर सकते हैं. ठीक है. डार्क एंड फॉगी कलर्स को हम लोग डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए या शेड को बताने के लिए यूज कर सकते हैं. Process of drawing a picture. First of all, students should draw rectangular objects such as books,
बॉक्स एंड राउंड शेप ऑब्जेक्ट सच एज ग्लास और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। ठीक है, इस तरीके के मतलब रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट्स हो, राउंड ऑब्जेक्ट्स हो, इनको पहले हमें ड्रॉ कर लेना चाहिए। कीप द ऑब्जेक्ट बिलो द आई लेवल एट अ सम डिस्टेंस ऑन अ सरफेस, किसी सरफेस मतलब सरफेस पे कुछ डिस्टेंस पे हमारा आई लेवल पे उसको रखना है। इट इज बेटर टू हैंग अ क्लोथ एज अ backdrop of a contrasting colors को कंट्रास्ट करता हुआ एक इस तरह का क्लोथ भी हम लोग हैंगिंग क्लोथ भी यूज कर सकते हैं। नाउ सेट द ड्राइंग पेपर ऑन द ड्राइंग बोर्ड विद अ क्लिप। ठीक है, ड्राइंग पेपर को ड्राइंग बोर्ड पे रखकर क्लिप में लुक एट द मॉडल प्लेस ऑपोजिट टू योर विथ फुल कंसंट्रेशन। हमारे अपोजिट में जो भी ऑब्जेक्ट हमें रखा है उसको फुल्ली अच्छे से कंसंट्रेशन कर कर मतलब उस पर पूरा ध्यान लगाकर उसके हर एक पार्ट्स को ध्यान से देखना है। ठीक है, नाउ सेट द ड्राइंग बोर्ड हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अकॉर्डिंग टू द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ द मॉडल। मॉडल की हाइट के हिसाब से हमें अपना ड्राइंग बोर्ड को रखना है। हॉरिजॉन्टली रखना हो तो वैसे रख सकते हैं, वर्टिकल रखना हो तो वैसे रख सकते हैं। ठीक है, एज यू फील्स कंफर्ट। Sit straight while drawing the objects. Don't change the position till you have finished the drawing. Straight ही बैठने की हैबिट रखनी चाहिए जब तक कि हमारा पूरा ड्राइंग कंप्लीट ना हो जाए। For example, you are sketching a box with a glass on a top surface of it. ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बॉक्स पे ग्लास ऑन द टॉप पे रखा हुआ है, ऐसा हम लोग कुछ ड्रॉ कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्क द नियरेस्ट कॉर्नर पॉइंट बी ऑफ द लोअर बिलो लेवल ऑफ द बॉक्स। ठीक है, बिलो लेवल पे हम लोग को उसको मार्क करना है। इसका नियरेस्ट कॉर्नर जो है उसको हम लोग को बी पॉइंट में वो उसको ड्रॉ करना स्टार्ट करना है। ड्रॉइंग द पेपर एट द राइट पॉइंट एंड ड्रॉ द बेस लाइन। सी द नंबर 5, बेस लाइन जो है उसे हमें पहले बना लेना है। फ्रॉम दिस पॉइंट बी ड्रॉ द लाइंस फॉर्मिंग एंगल्स with the lines towards the right and left from and mark the length and breadth। लेंथ और ब्रेथ को इस तरीके से मार्क करना है। उसके राइट में लेफ्ट में जो भी सारे एंगल्स जा रहे हैं उन सबको ड्रॉ करना है। These are the points A, C respectively. Now draw perpendicular straight line from a point B। ठीक है, point B से perpendicular straight line में ड्रॉ करनी है। Mark the highest height at a point E। Point E पे height उसकी मापनी है। ठीक है, now draw a parallel line। फिर उसकी parallel line ड्रॉ करनी है B and C, A and B from the point E towards the right। ठीक है, यहाँ पे जैसे है parallel lines ड्रॉ करनी है इस तरीके से। Now draw perpendicular from the point A and C which would meet a point D। ठीक है, फिर point D को मिलता हुआ इस तरीके से हमें लाइन ड्रॉ करनी है ब्रेड्थ और लेंथ की। ठीक है, अपर लेयर draw parallel lines from the point D। D से parallel lines opposite ड्रॉ करनी है and another parallel line from F and E। F और E से हमें और अलग दूसरी parallel lines। When these two lines meet upper part of the box, और ये जो दो लाइन मीट कर रही है upper part of the box, ये parallel lines, तो क्या होगा, when these lines get meet the upper part of the box is form, box form होगा। The student is in this way can draw a shape of box। See the figure 5.2। इस तरीके से हम लोग 5.2 ये जो फिगर है इस तरीके से हम लोग बॉक्स का फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। Now draw the picture of the glass kept on the upper part of the box। अब बॉक्स के ऊपर रखा हुआ upper part of the box का upper part of the box पे ये ग्लास जो रखा है उसको ड्रॉ करना है। Measure the center point of the lower level of the glass kept on the upper level। Draw perpendicular from the point and mark the height of the glass। Draw parallel line from these 2 points। Now mark the breadth of the upper and lower level from point 1, 2 and 3 and 4। Let us join the parts 1 and 3, 2 and 4। ठीक है, इस तरीके से 1, 2, 3, 4 इस तरीके से पार्ट्स बनाने के बाद ठीक है इन सबको ज्वाइन किया जा सकता है। Of the top of the glass, this will enable the student to draw outline sketches of the glass। Use oval shape to draw the top and bottom of the glass। Mark 2 points 5 and 6। फिर 5 और 6 को दो अलग पॉइंट्स को मापना है। Central line, make them a meet। ठीक है, एक central line बनानी है। Use similar method to draw the bottom of the glass। ठीक है, bottom of the glass को भी draw करने के लिए same line ड्रॉ करनी है। You may use the pencil shade or colors to complete the drawing of the object। इसको उस ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हम लोग ड्रॉ शेडिंग्स को यूज कर सकते हैं। समरी, अ स्टूडेंट कैन ड्रॉ ऑब्जेक्ट ऑफ रेगुलर प्रैक्टिसेस। ये सारे हम लोग को रेगुलर प्रैक्टिस भी करनी ही पड़ती है। दिस विल जनरेट कॉन्फिडेंस एंड मैच्योरिटी। जितना ज्यादा हम लोग ड्राइंग करेंगे उतना ज्यादा हमें एक्सपीरियंस आएगा और उसमें एक्सपर्टीज आ जाएगा।
Light and shade help the artist to discriminate between the rectangular round shaped objects. ठीक है, इसकी वजह से हम लोग को लाइट और शेड की वजह से हम लोग को उसके बारे में पता चलता रहेगा, रेक्टेंगुलर और राउंड शेप ऑब्जेक्ट्स के बारे में। सिमिलरली कलर कॉम्बिनेशन ऑफ फीचर्स इमर्ज ब्यूटीफुल एंड लाइवली। जिस तरीके से हम लोग कलर्स को यूज करेंगे तो उसमें और लाइवनेस आने लगेगा। ठीक है, जितना ज्यादा कलर्स का यूज करने लगेंगे उतना ज्यादा हमको उसके बारे में डिटेल चीजें पता चलने लगेंगी। लिटिल लाइफ बाय स्टिल लाइफ विद द फ्लावर्स। So that we have completed this also, this chapter also. So here we have chapter number 4, composition. And a composition is an expression of emotion and feelings of an artist emerging out of the innermost layer of the heart. ठीक है, मतलब कोई भी कंपोजिशन करते वक्त, मतलब जो भी पेंटिंग बन रहा है वो क्या होगा, जिस भी आर्टिस्ट ने उसको बनाया है, लाइक इफ यू आर ड्राइंग एनी पेंटिंग, तो वो हमारे इमोशंस होंगे, वो हमारी फीलिंग्स होंगी जो हम लोग उस पेपर पे प्रेजेंट कर रहे हैं। सच फीलिंग्स आर एक्सप्रेस्ड थ्रू कलर्स, लाइन, शेप्स एक्सेट्रा। तो वो सारी जो फीलिंग्स होंगी, वो जो सारे इमोशंस होंगे, वो सारे कलर्स, लाइंस, शेप्स में कन्वर्ट होके वो बाहर पेपर पे प्रेजेंट होंगे। दे all are employed in such a manner that expressive composition is created। तो वो सारा का जो स्ट्रक्चर होगा, सबका जो कॉम्बिनेशन होगा, तो वो एक एक्सप्रेसिवली वो प्रेजेंट होगा, एक कॉम्बिनेशन, परफेक्ट कॉम्बिनेशन दिखेगा। इन सच अ कॉम्पोजिशन एवरीथिंग नीड्स टू बी प्रॉपर बैलेंस, रिदम एंड हार्मोनी। रिदमिक और हार्मोनी उसमें प्रेजेंट होगी। ठीक है, The composition becomes an imbalance if any of the initial elements is dropped। ठीक है, अगर कोई भी एक सिंगल चीज भी अगर उसमें बाकी रह जाती है तो वो कंपोजिशन कंप्लीट नहीं लगेगा, इनकम्प्लीट लगेगा। This necessitates harmonic communion of all shapes। Composition therefore means appropriate use of initial elements in the process of painting। मतलब हर एक एलिमेंट्स को प्रॉपर्ली यूज करना उस कंपोजिशन में वो जरूरी है। ठीक है, Geometrical forms of composition, the composition in which geometrical figures have been used is called geometrical composition। और जिस भी पेंटिंग में geometrical figures, ठीक है, उसको यूज कर रहे हैं तो उसे हम लोग geometrical composition कहेंगे। Take a simple plain paper to make a composition, cut it the shape of 10 into 10 and 10 into 15। ठीक है, तो उसका भी एक composition, और use your own imagination of draw a shape with a pencil and scale on the paper in agreement with the concept of imagination। ठीक है, डिफरेंट और उसका हम लोग जैसे भी हम लोग सोचे वैसा पेंसिल और स्केल से हम लोग उसको ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी पार्ट, और उसको ड्रॉ करके ड्राइंग कर सकते हैं हमारी इमेजिनेशन के हिसाब से, कॉन्सेप्ट के हिसाब से। इनसाइड द पिक्चर ड्रॉ शेप इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। अब उस पिक्चर में हम लोग सर्कल है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगुलर है, इसको ऐड कर सकते हैं। लेटर ऑन फील देम द कलर टू मेक कंपोजिशन। फिर उसके अंदर हम लोग कलर्स फिल अप करेंगे कि वो कंपोजिशन लगे। You may also use black or dark colored paper, cut it different shapes and decorate them on the paper you want to make it composition। ठीक है, मतलब ये डिफरेंट डार्क पेपर्स का यूज करके हम लोग उसको ड्रॉ करके कट आउट कर सकते हैं, तो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन सकता है, उसको डेकोरेट कर सकते हैं। Then on the paper you want to make a composition। This will facilitate you to know basic of composition and you will able to make a composition easily। तो इसकी वजह से हमें different ideas, creative ideas, thoughts आते रहेंगे। Remember the composition should be harmonious and balanced। ठीक है, irrespective of the medium of you use, it may be watercolor or poster colors। ठीक है, यहाँ पे जैसे different फिगर्स बनाए हुए हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, या कलर वाले इस तरीके से भी हो सकते हैं, अलग अलग शेप्स को इन्होंने कट किए हैं। ठीक है, conceptual position, such a composition is based on the students imaginative powers। ये सारे composition किसके ऊपर बेस्ड होंगे, हम लोग इसका सोचते हैं वैसे ही हम लोग उसको ड्रॉ करेंगे और कट आउट करेंगे, जो हमें अच्छा लगेगा, जो हमारे फीलिंग्स जिसमें से प्रेजेंट हो रही होगी, ठीक है, वैसे ही चीजें हम लोग ड्रॉ करेंगे। The imagination is rooted in the worldwide experience of life। It is important to decide the subject matter before the composition is initiated। It all depends on the student's choice of the subject matter। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हमारी चॉइस पे है, कौन सी पेंटिंग हमें करनी है, कौन सा ऑब्जेक्ट हमें बनाना है, किस तरीके की क्रिएटिव, हर एक के पास अपनी अलग अलग थिंकिंग होती है और वो क्रिएटिव माइंड अलग अलग कुछ ना कुछ बना रहा होता है। इट मे वेरी फ्रॉम फिशमैन, रोड साइड ढाबा, फेयर, रेन, railway station to bus stop। Firstly draw 4-5 composition based on your choice, your subject। Later
enlarge one of the best composition you have made either on the paper or any material. ठीक है, मतलब different materials से हम लोग भी बना सकते हैं, even with the use of paper. ठीक है, वो फिर हमारे ऊपर है कि हमको कितना क्रिएटिव और कितना डिफरेंट बनाना है। कंपोजिशन में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ठीक है, वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन आर्टिस्ट चॉइस, ये हमारे भी चॉइस पे रहेगा। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ऑल कंपोनेंट्स यूज्ड इन द कंपोजिशन आर रिलेटेड टू द ईच अदर। मतलब ये हमें देखना है कि जो भी कंपोनेंट्स हम लोग उसमें ऐड कर रहे हैं वो सब एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए। इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट टू नोट दैट विथड्रॉल ऑफ एनी कंपोनेंट would affect the entire composition। एक भी अगर उसमें से मिस हो रहा है तो वो पूरे कंपोजिशन को अफेक्ट करेगा, मतलब उसकी कमी महसूस होगी। Every composition has a central focus point। हर एक कंपोजिशन में एक सेंट्रल फोकस पॉइंट होता ही है। It should be an obvious point in the entire composition। Every good composition has a balance, harmony and rhythm। ये तीनों चीजें होती है, ठीक है। फिगर 5 and 6 पे two birds are composed on a tree branches with a harmony and balance। हार्मोनी और बैलेंस के साथ ये बर्ड्स को इन्होंने ड्रॉ किया है ब्रांचेस पे। आफ्टर द लाइन ड्राइंग द कंपोजिशन इज कलर्ड सच अ कॉम्बिनेशन वुड मेक द कंपोजिशन अट्रैक्टिव एंड कंप्लीट। ठीक है, जब इस पे कलर्स और परफेक्टली हो जाएगा, सारे शेड दे दिए जाएंगे तो एक कंप्लीट पिक्चर लगेगा। ठीक है, इस तरीके से कंपोजिशन विद ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सारे हैं फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर यूज्ड फॉर द कंपोजिशन। ये सारी चीजों को हम लोग यूज कर सकते हैं। You can paint। Select a few of this and set on an even platform. Hang a curtain in the background. Choose the item according to the choice of the object। हम लोग भी किसी भी ऑब्जेक्ट के बैकग्राउंड में हम लोग कर्टन भी लगाकर हम लोग वो ड्रॉ कर सकते हैं। It is presumed that the student is wise enough to decide the size of the object। ठीक है, firstly draw one or two objects with a pencil and show light and shade। ठीक है, तो एक या दो ऑब्जेक्ट्स को बनाकर हम लोग लाइट शेड उसमें दे सकते हैं। यूज ऑफ कलर शुड फॉलो इट, बैलेंस, हार्मनी एंड रिदम आर इनिशियल फॉर द कंपोजिशन। यू कैन सिलेक्ट सम वेजिटेबल्स, अरेंज ऑन अ टेबल विद अ कलर्ड क्लॉथ इन द बैकग्राउंड, ड्रॉ एंड कलर इट। ठीक है, बैकग्राउंड में कलर क्लॉथ रखकर हम लोग वेजिटेबल्स, फ्रूट्स को भी एक टेबल पे सेट कर हम लोग उसका पेंटिंग कर सकते हैं। दिस वे composition based on the nature, one can use village, cities, mountains, rivers, canals to draw the natural and based composition। natural based composition पे हम लोग ये सारी चीजों को ऐड कर सकते हैं, जिसमें विलेज होगा, सिटीज होंगे, माउंटेन्स, रिवर्स, ये सारी चीजों को ऐड कर एक नेचुरल कंपोजिशन बना सकते हैं। नॉर्मली हॉरिजॉन्टल सीन इज यूज्ड इन अ नेचर बेस्ड कंपोजिशन। हॉरिजॉन्टल ही हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं व्हेन वी आर making some natural compositions। For example, choose any scene, anything and everything seen in the nature can be used for a composition। जो भी चीजें नेचर में दिख रही है वो सारों को हम लोग नेचर कंपोजिशन में यूज कर सकते हैं। Focal point is a must component in a composition। See figure number 10। Before colors are used in the composition, it is suggested that composition may be made with a pencil। composition pencil से भी बनाए जा सकते हैं। Mark space of light and shade with a pencil। फिर उसको हम लोग पेंसिल शेड, लाइट शेड जो भी है हम लोग दे सकते हैं। The reviewer can have a clear picture idea of light and shade in the composition। वो clear picture idea आ जाएगा हम लोग को लाइट और पिक्चर कंपोजिशन में। Now color can be used with the composition। ठीक, फिर कलर्स भी यूज कर सकते हैं कंपोजिशन में। Decide the mark and space the high, medium and low tone of colors। बैलेंस ऑफ कलर्स इज इनिशियल। कोई भी ऑब्जेक्ट को कलर करते वक्त उसमें बैलेंस होना जरूरी है। ज्यादा कम, किस वक्त कौन से जगह पे ज्यादा यूज करना है, कौन से जगह पे कम करना है, ये जरूरी है। बैलेंस ऑफ कलर्स इज इनिशियल। हार्मोनी एंड रिदम आर साइंस ऑफ गुड कंपोजिशन। हार्मोनी भी होनी चाहिए, रिदमिक भी लगना चाहिए वो, तो एक गुड साइन है एक परफेक्ट कंपोजिशन।